اپنے لوگوں کے لیے کفارہ بن کے آؤں گا کیونکہ میں پاک ہوں، کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاک قربانی گزران دی گئی ہے، اس لیے آپ نے صرف اس قربانی کو اب اپنے لیے چن لینا ہے، اس کو مان لینا ہے، اس کو قبول کر لینا ہے۔ یہ ہے مسیح یسوع کی فضیلت، جو اور کسی میں یہ فضیلت ہے نہیں کہ وہ بے گناہ ہو، وہ مولود مقدس ہو۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوا نہیں جس کے متعلق کوئی کہہ سکے کہ یہ شخص بے گناہ پیدا ہوا اور بے گناہ مر گیا۔ بالکل۔ اور جہاں تک تعلق ہے یسوع مسیح کے نام کا، کیونکہ جب نام دیا گیا تو فرشتہ نے کیوں اپنا جو ہے وہ ایک میسج کیوں ایسا دیا کہ مقدسہ مریم کو انہوں نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ یشوع رکھنا، جو کہ ہبرو کا ورڈ تھا یہوشوا رکھنا، جس کو ہم اردو میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یسوع بنتا ہے، جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جیزس کے طور پر جانتے ہیں، لیکن عبرانی میں وہ جو نام تھا وہ یہوشوا تھا، جس کا مطلب تھا یاہوے the Savior، یعنی کہ ان کو جو نام بخشا گیا اس سے بھی یہ ثابت ہوا، پہلے پیدائش سے ثابت ہوا کہ وہ مولود مقدس تھے، خدا تعالیٰ کی پیدائش سے، خدا تعالیٰ کے حکم سے، خدا تعالیٰ کی مرضی سے وہ پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ سے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ خدا کی روح نے جنبش کی اور مریم کے بطن میں جو ہے وہ کنسپشن کو کریٹ کیا، اور پھر جو نام ان کو بخشا گیا وہ خدا کا نام تھا، اور کوئی نام مسیح کو نہیں بخشا گیا۔ باقی تمام نبیوں کے نام جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ذکر یا ہے یعنی کہ خدا کا ذکر کرنے والا، جیسے عبد یا ہے یعنی خدا کی عبادت کرنے والا، جیسے یشیا ہے یہ یسایہ ہے یعنی کہ خدا کا نبی، اس کی مانند کون ہے۔ ایون فرشتوں کے نام جیسے ہیں، گیبریل یا جبرائیل کا مطلب ہے خدا کی قوت رکھنے والا، میکائل کا مطلب ہے کہ ہمارے خدا کے فرشتہ کی مانند کون ہوا، لیکن یسوع کا نام تھا جس میں خدا کا نام شامل تھا، خدا نے اپنا نام اس بیٹے کو دیا اور اس کا نام مطلب تھا یہوہ بچانے والا، یہ نہیں کہ یہوہ کی طرف سے بچانے والا، اس کا نام تھا یہوہ بچانے والا۔ اور ایک اور اہم بات جو مسیح کی پیدائش کے وقت پھر اس سے آگے چلتے ہیں وہ یہ تھی کہ جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو آسمانی لشکروں کے گروہ اس کو بشارت کو لے کے خوشخبری کی خبر جو ہے دنیا کے لیے لے کے آتے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور کس بات کی وہ خوشخبری دے رہے تھے کہ صلح کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ اب پیدا ہوا ہے، اب تم لوگوں کو فکر کی ضرورت نہیں، جو گناہ میں گرے ہوئے تھے ان کا خدا سے ملاپ کرنے والا پیدا ہو گیا ہے، جی بالکل، صلح کرانے والا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ خوشخبری بھی کون دے رہے ہیں؟ کوئی انسان نہیں دے رہے، یہ اس ریلم کے لوگ ہیں جو خدا جہاں فرشتے نازل ہوئے، جی یہ روحانی لوگ ہیں جو خدا کی خوشخبری دے رہے ہیں، فرشتے کے عالم بالا پر کی خبریں۔ ایک اور میں یہاں پر چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اناجیل ہے وہ ایرامی زبان میں لکھی گئی، ایرامائک لینگویج جو کہ ڈائلیکٹ تھا ہیبرو کا، اس زمانے میں ایرامائک بولی جاتی تھی، اور یہ جو فرشتوں نے بات کی ہے کہ ایرامائک جو ٹرانسلیشن ہے اس کو پشیٹا کہا جاتا ہے، تو فرشتوں نے جو لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کی، گڈریوں کو، چرواہوں کو جو کہ وہاں کے لوگ تھے، لوکل لوگ، ان کو یہ میسج دیا اور کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، مسیح نبی نہیں کہا، مسیح پیغمبر نہیں کہا، مسیح خداوند، اور اس کے لیے جو ایرامائک ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے مشیاخ ماریاہ، مطلب کہ مشیاخ میرا خدا، یعنی کہ جو مسیحا ہے میرا خدا۔ ایرامی میں مشیاخ کو مشیخہ کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم مسیحا کہتے ہیں، یعنی کہ مسیح ہمارا خدا پیدا ہوا، اور فرشتوں نے وہاں پر اقرار کیا کہ یہ جو مسیح پیدا ہوا ہے یہ ہمارا خدا ہے جو کہ بچے کی شکل لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ اور اس کی مثال ہمیں کبھی نہیں ملی زمانوں سے شروع سے کر کے کہ جب کسی کی پیدائش پہ فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اتر آئے ہوں، ہاں بشارت دینے کے لیے، ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، آسمانی لشکروں کا گروہ، آسمانی لشکر کا ایک گروہ یہ کہتا ہوا اتر آیا۔ آگے ہم چلتے ہیں اب کہ خدا کا بیٹا، یہ تو فرشتے نے گواہی دی کہ
खुदा ताला का बेटा पैदा हुआ और खुदा ने खुद अपने मुंह से कहा कि जो पैदा होने वाला है उसका नाम यीशु रखना, जैसे कहा गया है कि यहोवा छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 30 आयत से शुरू करके, मैं और बाप एक हैं। ये खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने इसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम की वजह से तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। और फिर आगे अगर 36वें आयत में चले तो उन्होंने कहा, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। ये यीशु मसीह की खुद गवाही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हमारे बहुत सारे मशहूर डिबेटर्स भी हैं जो कि मसीहियों से डिबेट करते रहते हैं, और वो ये हमेशा कहते हैं कि मसीह ने कहाँ अपने मुंह से कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और कहाँ अपने आप को खुदा ठहराया। तो यहाँ पर यहूदी जो कि उसको एक इंसानी शक्ल में देख रहे थे, उनके लिए ये बात कॉम्प्रीहेंड करना मुमकिन नहीं था कि कैसे खुदा इंसानी शक्ल लेकर आ गया। हालांकि अगर वो जहन खोलते, क्योंकि यीशु ने 8वें बाब में कहा था कि अगर तुम मूसा की किताब पढ़ते तो तुम जान लेते कि मेरी बाबत लिखा है, क्योंकि वहां पर भी खरूज की किताब में खुदा इंसानी शक्ल लेकर आया और उसने 70 बुजुर्गों और इसराइल के जो बुजुर्ग थे उनके साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन यहाँ पर यहूदियों ने कहा कि तू आदमी का सा दिखता है, आदमी की मानद है, तो तू कैसे अपने आप को खुदा बनाता है? क्योंकि यीशु ने कहा मैं और बाप एक है, यानी कि मुझ में और बाप में यानी खुदा में कोई फर्क नहीं, मैं ही वो हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर यहूदियों को मसीह का इंतजार था, बिल्कुल वो मुंतजर थे मसाया के, उनको पता था कि उसने आना है, एक फिदिया देने वाले ने आना, निजात देने वाले ने आना है। फिजिकल फिदिया के लिए भी वो मुंतजर थे और स्पिरिचुअल फिदिया के लिए भी वो मुंतजर थे, एक मसीहा के आने के। जी बिल्कुल। उसके बावजूद जब मसीहा, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा वापस उस आयत पर जहां पर लिखा है कि उसके बाप दाऊद का तख्त उसको दिया जाएगा। एक्चुअली वो इस आयत को जो है वो फिजिकली इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो दाऊद नबी थे जब वो बादशाह बने तो उनकी तख्त में, उनकी हुकूमत में 12 के 12 कबीले थे। लेकिन सुलेमान जो उनके बेटे थे, उनके बाद 2 हिस्सों में हुकूमत टूट गई थी और नॉर्दर्न किंगडम जो थी वो एग्जाइल में चली गई थी। तो यहूदियों के जहन में ये था कि जब दाऊद का तख्त दिया जाएगा, मुराद ये कि 12 के 12 कबीले वापस आ जाएंगे और रोम पर हम फतह पा जाएंगे। वो होना है, वो अब दूसरी आमद में होगा कि जब खुदावंद सारी कौमों में से अपने नाम लेवाओं को चुनेगा और एक हुकूमत, एक बादशाही कायम कर दी जाएगी। लेकिन यीशु मसीह की जो आमद थी वो 2 रोया थी, डबल फोल्ड थी। पहली आमद में उन्होंने हमें शैतान की उस बादशाही से, गुलामी में से आजाद किया। अब जो है हमें बदन की जो बादशाही भी अता की जाएगी, और इस चीज को माना जाता है कि सब मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए वापस आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कामों के सबब से बेटा जाहिर होना, एक आयत में शेयर करता चलो यूहन्ना की इंजील में उसके 5वें बाब में और उसकी 20वें आयत से लिखा है कि इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द कर दिया, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। और जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी नहीं करता जिसने उसे भेजा है। और यहाँ पे एक और बात काबिल जिक्र है, आपको याद होगा कि एक यहाँ पे बाइबल में एक कहानी है कि जब एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने अभी वो भीड़ में जा रहे थे तो वो अंधा पुकार रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, आए इब्ने दाऊद, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो यहूदी जो थे वो किस कदर तलमिला उठे थे, वो इस कदर बेचैन हो गए थे कि ये इसे क्यों इब्ने दाऊद कहते हैं, क्योंकि उन्हें इब्ने दाऊद की इस तलाक की बिल्कुल समझ थी। यहूदी आलम जो थे वो सारे आलम लोग थे, शरीयत को पढ़ना उनका जो है फर्ज था। वो बचपन से लेकर शरीयत की वो
जैसे खुदावंद ने कहा कि उसको अपने दिल में रखकर हमेशा उस पर ध्यान किया करो, वो ध्यान करने वाले आलिम लोग थे। और जब वो इब्ने आदम का लफ्ज सुनते हैं, इब्ने दाऊद का, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि ये किसको पुकार रहा है। इब्ने दाऊद कौन है? मसाया है जो आने वाला है। लेकिन यहूदी तो मसाया किसी और रूप में देखना चाह रहे थे, जैसे कि तहसीन अभी कह रहे थे, वो तो तख्त और ताज के वारिस को देखना चाह रहे थे। तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे उनको नजर आ रहा है। बिल्कुल। और लिखा है कि जिंदा जो करता है वो बाप है। खुदा के पास ये कुदरत है कि वो जिंदा करने पर कादिर है। खुदा के पास ये कुदरत है कि वो जन्म के अंधे को शिफा देता है और उसको आंखें अता कर देता है। कोई इंसान, कोई नबी ऐसा ना कर सका। खुदा के पास ये कुदरत है कि वो आसमान से जो है वो रोटी बरसाता है, क्योंकि जब मूसा और उसके साथ बनी इसराइल कौम थे, उन पर जो मन और सलवा उतरा, तो वो खुदा ने, कादिर मुतलक ने आसमान से वो रोटी जाहिर की और दुनिया को दी। और वही तरीका हम यीशु मसीह में देखते हैं कि जब 5000 लोग भूखे वहां पर बैठे थे, तो उनको 5 रोटियों से उनको सेर कर दिया गया, आसमान से वो रोटी उतार दी गई। और मसीह ने कहा कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, क्योंकि मेरे बाप ने जो है वो खाना खिलाया। और फिर हम देखते हैं कि जन्म के अंधे को जो है ठीक कर दिया गया, कोढ़ी को साफ कर दिया गया। और कोढ़ियों का जो साफ होना था, ये स्पेशल निशान था मसाया के आने का, खुदा के बेटे के ज़हूर का। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को शिफा दी, तो खुदावन ने कहा कि जाकर अपने तई काहिन को दिखाओ। उसकी वजह यह नहीं थी कि खुदावन को कोई डाउट था कि ये जो जरा जाके चेक करवा लें, बल्कि खुदावन ने एक निशान के तौर पर उनको भेजा था कि जाओ और जाकर जो है वो बताओ कि कोढ़ी जो है वो शिफा पा गया। क्योंकि यसाया नबी के सहीफा उसके 61वें बाब में लिखा था कि जो मसीह आएगा, जो खुदा का बेटा होगा, वो कोढ़ियों को शिफा देगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। जी। और फिर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को कैसे बेटा जाहिर करते हैं। जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर उठे हैं यरदन के उसमें से, तो आसमान पर से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। अब खुदा आसमान पे से और से किसकी आवाज आएगी? मसीह के हक में। और कौन आवाज देकर कह सकता था कि तू मेरा प्यारा बेटा है? खुदा के अलावा। और अभी तक तो किसी को समझ आई नहीं कि यीशु मसीह की हकीकत असल में है क्या, क्योंकि यहूदी जो उसको शुरू से उसके मुंतजर थे, मसाया के वो उसको नहीं पहचान सके। लेकिन आवाज जो थी वो खुदा की थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। बिल्कुल। और एक और बात जो है यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 40वीं आयत में लिखी है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए। प्रॉब्लम ये था कि बाप को कोई नहीं देख सकता। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि बाप रूह है और उसको कोई नहीं देख सकता, वो भस्म करने वाली आग है, वो पाक है। और जब खुदा जो है वो बाप की शक्ल में होता है, तो वो तख्ते अदालत पर बैठा फजल और अदालत करने वाला खुदा है, और उसके सामने हम कैसे हाजिर हो सकते हैं? इसीलिए बाप बेटे की सूरत में जो है वो आता है। और लिखा है कि ताकि जो कोई बेटे को देखे, यानी कि खुदा को बेटे की शक्ल में देखे, उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यानी कि बेटे के पास जमीनी खिदमत में भी इख्तियार था कि मुर्दे को जिंदा करता था, और क़यामत में जो लोग जिंदगी पाना चाहते हैं या मुर्दों में से जी उठना चाहते हैं, उन पर यह फर्ज है कि वो बेटे पर ईमान लेकर आए, क्योंकि बेटा उन्हीं को जिंदा करेगा जो उस पर ईमान लेकर आएंगे। और एक और जगह ये खुदा खुद कहता है कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है। अब अजीजों, अगर आप ये हवाला देखना चाहते हैं तो ये लूका रसूल की इंजील के 9वें बाब में और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। अब जो इसकी सुन लेता है वो तो पार हो जाता है। बिल्कुल। और जो इसकी नहीं सुनता उसको फिर खुदा हाफिज, फिर और मैं क्या कहूँ। इसलिए कि इनसे वाज़े अल्फाज में खुदा आप पे और कुछ जाहिर कर नहीं सकता। और जो जाहिर हुआ है उसको आज पकड़ लें, थाम लें, क्योंकि ये खुदा खुद अगर कहता है कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है और इसकी सुनो, तो फिर हम कौन हैं। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तब तक की इजाजत, कहीं जाइएगा नहीं।